Good morning, students. Today we are starting with the lesson number 17, that is construction of quadrilateral. In this lesson, we will have some questions based on construction of quadrilateral. Some information regarding the construction of quadrilateral will be known to you in the numerical, and by using that information, you have to draw quadrilaterals. So first of all, I will explain you how we can draw a quadrilateral if its four side and one diagonal is given. Okay, if in a quadrilateral four side and one diagonal is given, then how we can draw that quadrilateral, that is what we have to study in first construction. So I have an example. In this example, the question is like this: construct a quadrilateral ABCD in which AB is equal to 4.8 centimeter, then BC is equal to 4.3 centimeter, CD is equal to 3.6 centimeter, AD is given as 4.2 centimeter, and diagonal AC is given as 6 centimeter. So in this case, how we can draw a quadrilateral, that is what we have to study. So first of all, you have to draw a rough sketch of this quadrilateral. Okay, so I am drawing a rough sketch of quadrilateral and give name as they have mentioned us, A, B, C, D. And AB is 4.8, so I have written here 4.8. Then BC is 4.3, so I will write 4.3 here. Then DC is 3.6, so this is 3.6 centimeter. AD is 4.2, so I will write here 4.2 centimeter. And then AC is given as 6 centimeter, so AC will be like this, 6 centimeter. Okay, so now we are going to draw the same quadrilateral on our notebook. So what we have to do first, you can use your scale, and by using scale you have to draw segment AB first, which is of 4.8 centimeter, as we can see in our rough sketch. So I will draw first of all AB, that is of 4.8 centimeter. As you can see, this is my 0 point and this is my fourth point. So I have to make 2 points here. This is 0 and then 4.8, 4.5, 6, 7 and 8. Join the segment and give it a name AB as mentioned in the question. Then what I am going to do, I know AC is of 6 centimeter and I know BC is of 4.3 centimeter. So अगर मैं इसको इस सेगमेंट को बना देता हूँ by using compass and this segment also by using compass, then the joining point of this two point will be the point C, है ना. तो वही मैं अभी यहाँ पे करने वाला हूँ. सबसे पहले आप क्या करोगे, measure the distance 4.3 in your compass, 4.1, 2 and 3. 4.3 का डिस्टेंस मैंने अपने कंपास में ले लिया है. You can see here. Okay, and then by taking this distance and B as your point, you have to make here one arc like this. Okay, on this arc there will be one point which is a point C. To find point C, I have to cut this arc from A with distance 6 centimeter because AC is 6 centimeter given. Okay, तो अभी मैंने यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस अपने कंपास में ले लेना है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 6 सेंटीमीटर ले लिया है. आप भी इसी तरह से परफेक्ट डिस्टेंस आपको लेना है ताकि आपकी डायग्राम एकदम परफेक्ट बने. अभी AC जो है वो A से C का डिस्टेंस है, तो ये B से C वाला डिस्टेंस मैं ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ कर चुका हूँ. अभी A से C का डिस्टेंस मैं ड्रॉ करूंगा. A के ऊपर पॉइंट रखा और इसको कट कर दिया. जिस पॉइंट पे कट होगा
वो पॉइंट आपका पॉइंट है सी पॉइंट, है ना। तो ये हो गया मेरा सी पॉइंट। अभी मैं क्या करता हूँ, इतना जो पार्ट है इसको मैं पहले ज्वाइन कर देता हूँ। ये हो गया मेरा बी सी 4.3 सेंटीमीटर, और ये हो गया मेरा ए सी जो कि है 6 सेंटीमीटर। ओके, अभी मुझे क्या करना है, ए पॉइंट से डी का डिस्टेंस 4.2 दिया हुआ है और सी पॉइंट से डी का डिस्टेंस 3.6 दिया हुआ है। तो मैं इन दोनों पॉइंट से अभी उस पॉइंट को फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं ए डी वाला ले लेता हूँ डिस्टेंस, जो कि 4.2 दिया हुआ है। तो ए डी को 4.2 यहाँ पे मेजर करना है कंपास के अंदर। ए डी ले लिया मैंने 4.2, दिख रहा है आपको। वही डिस्टेंस अभी ए से मुझे यहाँ पे कंपास के यूज करके ड्रॉ करना है। इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दिया, ये हो गया ए डी। तो डी पॉइंट इस आर्क के ऊपर कहीं ना कहीं मुझे मिलेगा। सी से भी मुझे डी का डिस्टेंस दिया हुआ है। सी से डी का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 3.6, है ना। तो मैं अभी क्या करूंगा, 3.6 का डिस्टेंस कंपास में पहले मेजर करूंगा। अभी मैंने 3.6 का डिस्टेंस ले लिया है। सी पॉइंट से डी का डिस्टेंस 3.6 है, इसलिए सी के ऊपर रख के इसको कट करना है। तो जिस पॉइंट पे कट करेगा वो पॉइंट आपका होगा पॉइंट डी। इसको मैंने डी नेम दे दिया है। अभी मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। ए डी ज्वाइन कर दिया और यहाँ पे सी डी भी मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से आपका ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो फॉर्म हो चुका है ना। अभी जो मेजरमेंट मेरे थे वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ए बी था 4.8 सेंटीमीटर, ये था 4.3 सेंटीमीटर, दिस वन इज 6 सेंटीमीटर, दिस डिस्टेंस इज 3.6 एंड दिस वन इज 4.2 सेंटीमीटर, है ना। और सभी अच्छे से आपको नेमिंग भी करना है। तो देखो मैंने बराबर नेमिंग लिखा हुआ है, ए बी सी डी। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके स्टेप्स लिखने हैं। तो स्टेप्स आपको लिखने आते हैं, सिंपल है। सबसे पहले क्या लिखोगे, ड्रॉ सेगमेंट ए बी, या फिर आप सबसे पहले क्या लिखो, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ गिवन क्वाड्रिलेटरल एंड देन ड्रॉ अ फेयर क्वाड्रिलेटरल आप लोग बोल सकते हो, जो कि आपका ओरिजिनल क्वाड्रिलेटरल है। उसको फिर आप इस रफ स्केच में से देख के हम लोग ड्रॉ करेंगे। So first of all, draw AB of 4.8 centimeter, then take distance 4.3 centimeter in compass, है ना। इस तरह से आप एक एक स्टेप जो आपने किया हुआ है वही स्टेप्स आपको नीचे लिखते जाना है ना। आप इस तरह से उसको लिख पाओगे। समझ में आया कि आपको। तो इस तरह से आप लोग ये कंस्ट्रक्शन कर सकते हो कि अगर आपको 4 साइड और एक डायगोनल क्वाड्रिलेटरल का दिया है तो उस केस में इस तरह से हमें कंस्ट्रक्शन करना है। अगर समझ लो आपके पास किसी कंस्ट्रक्शन के अंदर 3 साइड दी हुई है और 2 डायगोनल दिए हुए हैं, तो उस केस में क्या करोगे। तो इसी तरह से सबसे पहले तो एक सेगमेंट आप पहले ड्रॉ कर लोगे, एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, है ना। तो एक साइड बनाई, दूसरी साइड बनाई, और ये एक डायगोनल मुझे पता है तो मैंने ये बना दिया। उसी तरह से ये दूसरी साइड बना और यहाँ से भी डायगोनल आपको पता रहेगा तो वो भी ज्वाइन कर देना, तो वो भी आप इजीली ड्रॉ कर पाओगे, है ना। तो वो हमारा सेकंड टाइप है इमेज ड्रॉ करने का क्वाड्रिलेटरल के लिए, है ना। तो उसका भी मैं आपको एक शॉर्ट में फटाफट बना देता हूँ एक क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो, अभी मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, यहाँ पे लिखता भी हूँ जो जो मेजरमेंट मुझे दिए हैं वो सभी, ठीक है। तो सेकंड न्यूमेरिकल के अंदर उसने बोला है कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ए बी सी डी मुझे ड्रॉ करने के लिए बोला गया है, जिसमें ए बी है 4 सेंटीमीटर, उसके बाद क्या दिया है, बी सी 3.8 सेंटीमीटर, ए डी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, एंड डायगोनल ए सी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और एक डायगोनल बी डी दिया हुआ है मुझे 4.6 सेंटीमीटर। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक रफ स्केच यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। रफ स्केच आप अपने मन से बना सकते हो कैसे भी। ये मैं एक रफ स्केच बना रहा हूँ, जो जो चीज़ें मुझे मालूम है वो मैं यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ। उसने 3 साइड दी हुई है मुझे और 2 डायगोनल्स दिए हुए हैं, तो वो मैं सब यहाँ पे दिखाऊंगा। ए बी सी डी। ए बी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर का,
ये दिया है 3.8 सेंटीमीटर BC, AD दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। देन ये वाला जो डायगोनल है AC वो दिया है 5 सेंटीमीटर और ये डायगोनल दिया हुआ है 4.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले ये AB बनाएंगे, बाद में C पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे BC और AC को कट करा के, और बाद में D पॉइंट को ज्वाइन कराएंगे BD और AD को कट करा के। तो देखो कैसे करता हूं मैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, AB बना देंगे जो सबसे नीचे था, है ना। तो AB कितना दिया हुआ है मुझे, AB दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो ये आप सिंपली स्केल का यूज करके 4 सेंटीमीटर यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। यह हो गया मेरा 4 सेंटीमीटर का सेगमेंट रेडी, जिसको नेम देता हूं मैं AB, जो उसने गिवन में दिया है मुझे। नेक्स्ट क्या है, उसके बाद हमें B पॉइंट से C पॉइंट को फाइंड आउट करना है। तो BC का डिस्टेंस मुझे गिवन है 3.8, तो मैं BC पहले 3.8 यहां पर मेजर कर लेता हूं कंपास के अंदर। बराबर डिस्टेंस लेना है 3.8। ये 3.8 डिस्टेंस ले लिया। ये 3.8 B से C का डिस्टेंस है ना। तो आप क्या करोगे, B से यहाँ पे एक आर्क बना के रख दोगे जो कि C के लिए आर्क है। ठीक है, BC वाला आर्क इसी पॉइंट, इसी आर्क के ऊपर कहीं ना कहीं C मिलेगा। तो ये B से C का डिस्टेंस हुआ। A से भी C का डिस्टेंस मुझे मालूम है जो कि 5 है। तो वो डिस्टेंस अभी मैं मेजर कर लेता हूँ कंपास के अंदर। AC दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो ये मैंने 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लिया। अभी A से डिस्टेंस लेना है, इसलिए A के ऊपर पॉइंट रखो और इसको कट करो। जिस पॉइंट पे कट होगा वो पॉइंट आपका C पॉइंट है। इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये हो जाएगा BC, और इसको ज्वाइन कर दूं तो ये हो जाएगा मेरा डायगोनल AC। सही है। अभी हमने C पॉइंट को फाइंड आउट कर लिया ना, सेम उसी तरह से हम लोग D पॉइंट को भी फाइंड आउट करेंगे। D वाला पॉइंट A से 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है और B से 4.6 पे है। तो मुझे सबसे पहले 3 सेंटीमीटर निकालना होगा। तो मैं 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस फिर से एक बार कंपास के अंदर फाइंड आउट कर लेता हूं। ठीक है, ये हो गया मेरा 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। ये 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस किससे है, A से है। तो A से आप 3 सेंटीमीटर वाला यहाँ पे एक आर्क बना के रख दूं सबसे पहले तो। ठीक है, ये हो गया A से। B से वो डिस्टेंस कितना है 4.6, तो B से 4.6 मेजर कर लेना है। ये मैंने 4.6 मेजर कर लिया और ये B से भी मैंने कट भी कर दिया। तो देखो मुझे जो पॉइंट था D पॉइंट वो मिल चुका है। अभी D पॉइंट को ज्वाइन कर दो A से भी, इधर C से भी ज्वाइन कर दो उसको, और यहाँ से B से भी ज्वाइन कर दो। तो जो जो मेजरमेंट हमें दिया है वो हम यहाँ पे फिर शो कर पाएंगे। क्या क्या दिया था, AB दिया था 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखो 4 सेंटीमीटर। ये दिया है 3.8 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस था मेरा 5 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस था मेरा 4.6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने इमेज फॉर्मेशन या फिर ड्राइंग बना ली है हमारी क्वाड्रिलेटरल के लिए। ठीक है, तो ये दो तरह के मैंने क्वाड्रिलेटरल आपको यहाँ पे बना के दिखाए हैं। फर्स्ट केस में जहाँ पे आपको चारों साइड गिवन थी और एक डायगोनल गिवन था। ये सेकंड केस में 3 साइड गिवन है और 2 डायगोनल्स गिवन थे। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या हो सकता है हमें, तो 3 साइड दी हुई है और 2 इंक्लूडिंग एंगल दिए हुए हैं। तो ये भी हमारे पास एक स्टेज है। इस तरह के भी हमें इमेज फॉर्मेशन करने पड़ते हैं जिसमें 3 साइड दी हुई होती है और 2 एंगल्स दिए हुए होते हैं, है ना। तो वो मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बना देता हूँ। थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए इसलिए। ओके, सो थैंक यू।